Welcome back, dear children. Welcome back to my channel, Simplified Maths. We are meeting at least after a week because of the result preparation of 12th standard, as you know. Okay, now we are continuing with chapter 3, matrices. Okay, part 7. In the last lecture, what we have seen was few more important types of the matrices, and वो types कौन से थे? Symmetric matrix and skew symmetric matrix. That all we have seen in the last lecture. याद है ना? Symmetric matrix. So symmetric matrix के लिए क्या था definition? That if A dash is equal to A, A dash is equal to A dash means transpose. That also we have seen last time. Transpose means what? If you convert the row into column, corresponding row, first column, second row, second column, like that. Okay. Symmetric matrix, then skew symmetric matrix. This was the last definition we have seen. Okay, in the last lecture. So what is the skew symmetric matrix? If A dash is equal to minus A. If A dash is equal to minus A, then the matrix is called a skew symmetric matrix. Then we have seen two important results. Okay, that results are known as the theorem in the textbook, and that is if you take A plus A dash, is any matrix plus its transpose always gives you symmetric matrix. Okay, always याद रखना है A plus A ट्रांसपोज करोगे मतलब A dash करोगे तो always सिमेट्रिक ही मिलता है, और अगर आप A minus A dash करोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक ही मिलता है. That will be skew symmetric matrix. This is always there. Okay, right? So this was, I think, the last topic we have seen in the last lecture. I just quickly reminded you because we are meeting just after a week. That's why. Okay, right. And now one more thing. I don't know whether we have seen it or not, but very important note करके मैं लिख रहा हूँ. Very important note. Today we are going to do the sums based on this note also from the exercise 3.3. Okay, and the note is any matrix A, just see how I am writing up, is written as half into, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, A plus A dash, okay, plus half into A minus A dash. थोड़ा ध्यान से फिर से पढ़ेंगे इसको. Okay, matrix A, how I am writing it? Just check. Open the bracket. हाफ ए, ब्रैकेट को ओपन कर दो मतलब हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ ए प्लस हाफ ए डैश प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए डैश. सो व्हाट हैपन? प्लस हाफ ए डैश माइनस हाफ ए डैश कट हो गया. हाफ ए प्लस हाफ ए मीन्स हाफ प्लस हाफ मीन्स ए. सो ए इज एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म. व्हाट इज द रीजन? ये करने का मतलब क्या है? The reason is the above note. What is this note? That A plus A dash is always a symmetric and A minus A dash is always a skew symmetric. अगर आप उसको half से multiply करते हो, if you multiply with half, then this will be remaining symmetric only. ये जो है, ये always symmetric ही रहने वाला है, और ये वाला जो है वो always skew symmetric ही रहने वाला है. हाफ मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं. इट इज गोइंग टू रिमेन स्क्यू सिमेट्रिक ओनली. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ही है जो हमने शायद लास्ट लेक्चर में देखा हूं, दैट एनी मैट्रिक्स इन वर्ड्स इफ आई वांट टू राइट, so what can I write? That any matrix, okay, can be any square matrix. Why square? You know,
बिकॉज स्क्वायर होगा ना तभी उसका सिमेट्रिक या सिमेट्रिक बनेगा। नहीं तो अगर आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो अगर 2/3 होगा तो उसका 3/2 हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। तो 2/3 और 3/2 कभी सिमिलर नहीं हो, मतलब सेम नहीं हो सकते। हमने लिखा है ए डैश इक्वल टू ए, तो ए डैश इक्वल टू ए कब होता है? हाँ, या तो 2/2 या 3/3, ऐसा मैट्रिक्स ही होना चाहिए। सो ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही। तो any square matrix, okay, can be expressed, okay, as a sum of two matrices. Which are the two matrices? Sum of, ये पहले वाला कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक है। a प्लस ए डैश किया हाफ, तो दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड skew symmetric matrix and skew symmetric matrix. Okay. Any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Right? This is very important note. Hopefully मैंने ये शायद last time explain किया हो, I don't remember, but अगर नहीं किया है तो इसको भी ध्यान में रखेंगे. Now all based on this theory, हाँ ठीक है, transpose of a matrix, then their properties, then symmetric matrix, skew symmetric matrix. तो एक्सरसाइज 3.3 जो है दोस्तों, वो पूरी उसके ऊपर बेस्ड। इसमें से हार्डली 2-3 सब ऐसे जो मतलब कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू 2-3 मार्कर में इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें भी मिलेंगे। ठीक है, सो नाउ सी, आई टेक ऑल ऑफ यू कैन ओपन योर टेक्स्ट बुक। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि आप सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो टेक्स्ट बुक ओपन रखेंगे। ठीक है, exercise 3.3, okay, exercise 3.3, and just to see the page number of that exercise is 88. Okay, page number 88, exercise 3.3, page 88, okay, of the textbook. Right now, from this, if you have a textbook open, then will be very easy for you in discussing the problem when I'm whatever the speaking in this video, because I'm not going to keep the book open over here, right? So that's why if you have a book, will be very convenient for you. I'm just taking few sums of this. I'm not going to do all the sums. थोड़े थोड़े sums हम उसमें से try करेंगे कि वे किस टाइप के sums are. Suppose I take the sum number 2. Look into sum number 2. A matrix A given and matrix B given. All of you just look in the textbook. Matrix A given is 3/3 matrix. Okay, matrix B is also given a 3/3 matrix, right? Then verify that. उसमें सबसे पहले ये verify करना है. Verify that. उसमें दो क्वेश्चन है, उसमें से पहला क्वेश्चन ये है, verify that A plus B the whole dash means whole transpose is equal to A dash plus B dash. ये हमको सबसे पहले वेरीफाई करना, ठीक है। सो व्हाट वी शैल डू, वी स्टार्ट विद एलएचएस देन आरएचएस। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हमको चेक करना है। दिस प्रॉपर्टी वी हैव रिटन इन द लास्ट वीडियो, लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी रिटन दिस वन। मींस वेरीफाई करने का बोला है, मतलब कि ये होता तो है ही। ओके, वन मोर थिंग, व्हेन दे से वेरीफाई, ओके, समटाइम्स इन जेईई और समवेयर वो लोग इंटेंशनली ऐसा रिजल्ट देंगे जो वेरीफाई नहीं होगा।
ध्यान में सुनोगे फिर से, इंटेंशनली दे विल गिव सच अ रिजल्ट जो वेरीफाई नहीं होगा, राइट? So when they say verify that, that does not mean that always LHS equal to RHS. If they say show that, मतलब कि वो होगा. If they say prove that, means also it is going to be there. Okay, LHS equal to RHS. But if they use the word verify that, so verify means it may happen, it may not happen. ध्यान से सुनना, it may happen, it may not happen. But in the last video we have already seen, दोस्तों हमने लास्ट में देखा कि ये ऑलरेडी उसकी प्रॉपर्टी है, मतलब कि इट इज गोइंग टू बी वेरीफाइड, ये वेरीफाई होने वाला है, ठीक है ना, राइट? तो LHS पहले फाइंड करो, फिर RHS फाइंड, ठीक है? तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल टेक LHS, बट डायरेक्टली आई विल नॉट टेक LHS. फर्स्ट आई विल टेक A प्लस B. पहले क्या करोगे दोस्तों, A प्लस B कर दो, बाद में उसका ट्रांसपोज करो, सब एक साथ मत करना, नहीं तो गड़बड़ होगी, ठीक है? A plus B is equal to, it will be -1 2 3 first row. Hello, all of you look in the textbook, okay? 579 579 -211 -211. This is matrix A plus. Now matrix B. Matrix B is -4 1 -5, then 1 2 0 1 2 0, then 1 3 1 1 3 1. सो अभी इसका एडिशन कर दें, ठीक है? सो एडिशन, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. सो -1 plus -4. So -1 -4 will be -5. 2 plus 1 will be 3. 3 plus -5. So 3 minus 5 will be -2. ठीक है? 5 plus 1. You know the addition, how to do the addition, right? अगले एक्सरसाइज में 3.2 में वो हमने किया होगा, right? So 5 plus 1 6. 7 plus 2 9. 9 plus 0 9. ठीक है? -2 plus 1, so -1. 1 plus 3, so 4. 1 plus 1, so 2. ये हो गया हमारा A plus B. ये क्या आ गया दोस्तों, A plus B. अभी उसका आपको करना है ट्रांसपोज, दैट विल बी द LHS. ये क्या हो जाएगा, LHS, ठीक है? दैट आई एम राइटिंग ऑन द नेक्स्ट पेज. A plus B the whole dash. Okay, so okay, left hand side LHS is equal to A plus B whole dash. This is our left hand side. तो क्या करना है दोस्तों, LHS में हमको कभी कभी सिंबॉलिकली आई कॉल इट RI to CI. RR for row, C for column. RI to CI means R1 to C1. R1 मतलब first row की first column. R2 to C2. Second row become second column. Third row become third column. This is in symbolical in our state board book. हमारी जो पहले की बुक थी, हाँ, स्टेट बोर्ड की, नॉट द NCERT बुक. So this symbol was there, okay, right? But now they are not using it here, so I am directly writing. So first row मैंने वो पीछे के पेज पे लिखा हुआ है, वहां से मैं लिख रहा हूँ. So first row is -3 -5 3 -2. First row उसकी बनेगी फर्स्ट कॉलम, -5 3 -2 first column. Second row is 699 will become second column, 699 second column. Then third row -1 4 2, so वो हो जाएगी थर्ड कॉलम, ठीक है?
तो a प्लस बी द होल डैश हो गया, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अभी इसको हम दे देंगे नंबर 1, ये हमारा हो गया रिजल्ट नंबर 1। नाउ व्हाट इज आरएचएस? टू प्रूव आरएचएस इज a डैश प्लस b डैश। ठीक है, तो उसमें भी हम क्या करोगे कि पहले a डैश प्लस b डैश है ना, तो इफ इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आरएचएस करें तो व्हाट इज a डैश प्लस b डैश? a डैश प्लस b डैश, दिस इज RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, a dash plus b dash. Now all of you again look in the textbook. A dash means A transpose. तो जो टेक्स्ट बुक में A मैट्रिक्स दिया है उसको हम रो टू कॉलम कन्वर्ट कर देंगे। So first row is -1 2 3 will become first column -1 2 3. Second row 5 7 9 will become second column, and third row -2 1 1 will become third column. ये हो गया A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज। Now again look in the text. B vector is B matrix is given. Sorry. Okay. So take the first row as a first column. So -4 1 -5. First row -4 1 -5 becomes second first column. And second row 1 2 0 1 2 0 becomes second column. ठीक है, -5 0 1 -5 0 1। ठीक है, क्लियर, राइट। तो अभी करो इसका एडिशन। एडिशन यू नो हाउ टू डू, -1 प्लस -4 सो -5। अब चेक करते जाओ, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना वही आएगा, देखना। -5 आ गया, 5 प्लस 1 6, हाँ, -2 प्लस -5 ये क्या हो गया, -7। ये क्यों नहीं आया, 1 मिनट। A plus B the whole data, just wait। A plus B में हमारी कुछ गलती हुई है क्या? B देखना पड़ेगा। -2 प्लस 1 तो -1, 1 प्लस 3, 1 प्लस 1। B इसका हमने ट्रांसपोज किया ना, फर्स्ट रो -5 B -2 फर्स्ट कॉलम हो गई, 6 9 9 सेकंड हो गई, थर्ड -1 4 2, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, वो भी सही है। ओके, कहाँ पे गलती हो रही है, वेट। ए डैश में गलती नहीं है ना, वो चेक कर लेता हूँ। -1 2 3 फर्स्ट कॉलम हो गई, 2 5 7 9 सेकंड हो गई, -2 1 1 वो भी हो गई। उसके बाद बी डैश करना है, ठीक है, बी डैश -4 1 -5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई, 1 2 0 भी हो गया, बराबर है। एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम, थर्ड रो इज 1 3 1। तो मैंने यहाँ पे ये क्यों लिख दिया यार, थर्ड रो इज 1 3 1 1 3 1। सॉरी, हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी।
यहाँ पे -7 आया तो डाउट गया। अभी अभी देखो तो एडिशन करें, 5 + 1 6 आ गया। अभी -2 + 1 करोगे तो ये आ गया -1, तो देखो वो आ गया। ये 131 के बदले मैंने गलती से वो बी का कॉलम ही लिख दिया, एक्चुअली ट्रांसपोज लेना था, लेकिन मैंने वो गड़बड़ कर दिया। ठीक है, देखो ऐसा होता है। हाँ, इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं फिर भी हो रहा है। सो बी केयरफुल क्योंकि कभी दिमाग थोड़ा सा भी इधर उधर गया, गए काम से। 2 + 1 3 एंड 7 + 2 9। ठीक है, 1 + 3 4 एंड 3 + 3 + -5 so -2। ठीक है, एंड 9 + 0 9, 1 + 1 2। ओके, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो मेरा लेक्चर, तो जब मैंने यहाँ पे लिखा उसी टाइम पे शायद आपको पता चल गया होगा, लेकिन मुझे पहले से चेक करना पड़ा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरी गलती यहाँ पर है। मेरी गलती यहाँ पर है वो मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो मैथ्स में ये ऑलवेज ध्यान में रखना है कि व्हेन यू आर स्टडिंग और टीचिंग, देन यू डोंट नो एंड एट व्हाट स्टेप यू हैव मेड अ मिस्टेक। तो अगर आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तो आपको अगर चेक करना हो तो आपको यू हैव टू चेक फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे मैंने पहले से चेक किया, स्टेप बाय स्टेप देखकर देखा कि ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसे आगे आगे जाके फिर मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे मेरी गलती हुई है। तो ये ध्यान में रखना मैथ्स में। इसीलिए मैथ्स में अगर गलती हो तो फिर टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ से कौन से स्टेप से गलती है। सो बी केयरफुल। राइट, नाउ जस्ट लुक एट दिस मैट्रिक्स। ओके, I call it number 2. I call it number 2. Number 1 and number 2, if you see, both are identical. Again, is similar and same, equal. And hence, you can say by 1 and 2. Result verified. Okay. So, by 1 and 2, you can say that LHS equal to RHS, means A plus B the whole dash is equal to A dash plus B dash is verified. ओके दोस्तों, राइट। तो ये जो मैंने वेरीफाई किया, ऐसे वेरीफाई करने वाले बहुत सारे और सम भी इसमें है। either verify or find, means you have to find, but ultimately what you have to do is just take a transpose or a symmetric matrix or a skew symmetric matrix, उसके ऊपर का base problems इसमें से you will get. Okay, right? Even if you see sum number 5, सम नंबर 5 में खाली आपको हिंट देता हूँ कि आपको क्या करना होगा। 5 सम जो है उसमें वेरीफाई में, दिस इज टू वेरीफाई द सम नंबर 5। जैसे इन दिस वन देयर वाज द वेरिफिकेशन फॉर दिस प्रॉपर्टी, इन द सम नंबर 5 द वेरिफिकेशन फ्रॉम द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, ए बी द होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ए बी द होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। अब इसको आप कैसे करोगे? हाँ, ठीक है, आपको मैं खाली होमवर्क में ही दे रहा हूँ ये, लेकिन आपको हिंट बता दूं कि पहले क्या करो। फर्स्ट आप क्या करोगे, ए बी फाइंड करो, ए बी फाइंड। ठीक है, ए बी मतलब ए इंटू बी मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड विल बी ए बी द होल डैश, ऐसे, बराबर। देन इसको नंबर 1 दे दो। उसके बाद आप क्या करोगे, बी डैश ए डैश कैसे करोगे? तो आप फाइंड ए डैश एंड बी डैश, वो दो फाइंड कर लो, जो भी मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं ना, उसके ए डैश एंड बी डैश फाइंड। आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, देन आरएचएस करो।
RHS मतलब क्या है, B डैश A डैश, B डैश A डैश, मतलब जो भी यहाँ पे आपने B डैश और A डैश ऑप्टेन किया है, that you multiply whatever the result you get, say it is number 2, and after getting these two results we will be able to say LHS equal to RHS. Okay, please try this in the homework. It is based on the matrix multiplication and transpose. Okay, clear dosto, right? Hope you will be able to do it. Now, even the sum number 6, the sum number 6 is also almost same. ठीक है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज दिया हुआ है, तो दैट्स नॉट एन इश्यू. सम नंबर 6 है ना, उसमें आप देखोगे तो मैट्रिक्स ए में यू दिया हुआ है cos अल्फा sin अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये हमको दिया हुआ है. एंड वेरीफाई दैट a डैश a इज इक्वल टू i, ऐसे हमको वेरीफाई करना है. तो इसका a डैश क्या होगा, a डैश मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम cos अल्फा sin अल्फा, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये हमारी सेकंड कॉलम हो गई. सो ठीक है, तो ए और ए डैश मिल गया. नाउ वेरीफाई दैट, जो बोला हुआ है वेरीफाई, हाँ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ए डैश ए. सो डोंट चेंज द ऑर्डर, बी केयरफुल. मल्टीप्लिकेशन में आप मल्टीप्लिकेशन में इसका ऑर्डर चेंज मत करो, बी केयरफुल. डोंट, बिकॉज इट इज नॉन कॉम्बिनेटिव, नॉन कॉम्बिनेटिव मैंने बोला होगा. ठीक है, मीन्स don't put a dash, otherwise answer will not come. Okay, they say a dash a, so we have to verify a dash a only, right? So first I will write down both the matrix together, a dash a cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, एक मिनट, cos alpha a dash पहले माइनस sin alpha plus sin alpha cos alpha. Okay, this is a dash multiplied by a. Now this a is cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. So this I have written a dash a. ठीक है, just check again, a dash cos alpha minus sin alpha cos alpha sin alpha cos alpha, and this is a. एक बार चेक करके आगे बढ़ो तो क्या है कि अगर कोई गड़बड़ है तो पता है. अभी उसका करो मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, multiplication we did in the exercise 3.2, first row first column. Now I am not going to explain in detail, huh? Okay, first row first column cos alpha into cos alpha cos square alpha, right? You know the what you have to do is the sum of the multiplication of the corresponding element. First row first column cos alpha, so cos square alpha plus minus sin alpha into minus sin alpha, so minus minus plus, so plus will remain, so plus sin square alpha हो जाएगा. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, दिस पोजीशन इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के हिसाब से क्या होगा, cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा एंड प्लस minus sin alpha cos alpha, so that will be remain plus minus, so minus, so minus sin alpha cos alpha. आप देखो ध्यान से. ओके, तो यहाँ पर ये दोनों सेम हो गए, cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, means these two will get cancel out, तो ये हो गया 0. You know this is identity 1. ठीक है, अब फिर यहाँ पे आ जाओ, सेकंड रो
second column. Sin alpha, cos alpha, second row, first column. Sin alpha, cos alpha, sin alpha, cos alpha, and plus cos alpha into minus sin alpha. So that will be minus cos alpha, sin alpha. Again, you can see these two are same. ये दोनों कट हो जाएगी. ठीक है, right? Then second row, second column, sin alpha into sin alpha, that is sin square alpha, plus cos alpha into cos alpha, that is cos square alpha. ठीक है, so now see what happened. ये क्या हो गया दोस्तों, 1 0 0 1 है ना. ओके, बिकॉज ये दोनों कट हो गए, ये दोनों कट, इसलिए. ठीक है, तो आंसर हमको मिल गया आई, एंड दैट इज RHS. ये हमका वेरीफाइड हो गया. दे आस्क्ड टू अस टू वेरीफाई द रिजल्ट. हो गया वेरीफाइड, isn't it? Okay, so all the sums in this exercise you have to try like this only. Okay, right. Now I'm just giving you one more sum from sum number 10. This is sum number 10 is very important sum as far as your examination is concerned. Okay, वो 2 मार्कर 3 मार्कर्स में आ सकता है. Okay, this is an important sum. याद रखना, sum number 10 is an important sum. What is the title given? Express the following matrices as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. Okay, express the following, मैं पूरा नहीं लिखूंगा. Express as a sum of, short में लिख रहा हूं मैं, symmetric and skew symmetric. ओके, मैट्रिक्स. तो ये कौन सी नोट आ गई आज जो मैंने बिगिनिंग में समझाया, तो शायद लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था वो रिजल्ट है. एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड as the sum of two matrices out of which one will be symmetric and the another will be skew symmetric. ठीक है ना, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करेंगे दोस्तों, मैं इसमें से कोई भी एक सम ले रहा हूं. इसमें 2/2 भी है, 3/3 भी है. यू कैन टेक एनी वन ऑफ इट. हाँ, मेथड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर इट इज 2/2 और 3/3, नो प्रॉब्लम. ओके, तो सपोज आई टेक द फोर्थ वन ऑफ इट. मैं 2/2 ले रहा हूँ. 3/3 में ऐसा मत समझना कि उसमें टाइम वो सेम ही रहे, कोई फर्क नहीं. उसको पहले हम मैट्रिक्स A, just call it matrix A. It's not, name is not given, then we have to give name. Okay, 1 5 minus 1 2, 1 5 minus 1 2. This is matrix A given, right? ये हमारा given है. Now हमको क्या करना है according to note. पहले मैं वो नोट रिमाइंड कर देता हूँ आपको. We know that, ऐसा करके मैं लिख रहा हूँ. We know that A is equal to half A plus A dash plus half A minus A dash. ठीक है, राइट. दिस व्हाट द रिजल्ट. ये हमका आज ही हमने देखा कि A plus A dash will be symmetric, A minus A dash will be skew symmetric. ठीक है. So what now we will do? First to find out A dash. वो A dash फाइंड करके ये सब फाइंड कर लेंगे हम. ठीक है. So A dash, ठीक है, राइट. तो A dash करोगे तो इसका ट्रांसपोज 1 5 1 5 फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 2, ठीक है, सेकंड रो -1 2 सेकंड कॉलम.
ठीक है, राइट, ये ए डैश हो गया। हाँ, अभी ए प्लस ए डैश करो, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, दैट आई विल डू ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, आई विल डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज। तो ए प्लस ए डैश, दैट इज ए प्लस ए डैश कर लेंगे हम। तो मैट्रिक्स आप टेक्स्ट बुक में देखोगे, तो ए मैट्रिक्स इज 1 5 1 5 -1 2, ये हो गया ए प्लस ए डैश करोगे, ए डैश ऑलरेडी आई डिड इट ऑन द लास्ट पेज, प्रीवियस पेज, दैट इज 1 5। ठीक है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, और -1 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इसका जो एडिशन आएगा वो सिमेट्रिक ही होगा, देखो। ठीक है, इसका एडिशन जो आएगा ना, वो सिमेट्रिक ही होगा। ध्यान से देखोगे तो सी 1 + 1 2, ठीक है, 5 + -1 4, -1 + 5, so again 4, and 2 + 2 4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, लुक एट द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सी 2 4 2 4 सेम है। सेकंड रो 4 4, सेकंड कॉलम 4 4 सेम हो गया। सो therefore it is symmetric, isn't it? ओके, तो अभी हमारा पर्पस क्या है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ ए प्लस ए डैश, हाफ कर दो। ठीक है, तो हाफ करेंगे तो आपको क्या करना होगा, हाफ 2 4 4 4, बराबर। तो वो हो जाएगा, हाफ को अंदर ले जाओ, इफ यू टेक हाफ इनसाइड, then you know half will be multiplied to each of the element, which will be 1 2 2 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी जैसे मैंने ये फाइंड किया ना, ऐसे हमको दूसरा क्या फाइंड करना है, हाफ ए माइनस ए डैश भी फाइंड करना है। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू इज ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, सी ऑलरेडी ऊपर मैंने लिखा हुआ है, बीच में खाली प्लस का माइनस ही करना है। तो अगर आपको यहाँ पे सीधा आंसर लिखना हो तो कोई मार्क्स कट नहीं करेगा, हाँ? ठीक है, 1 प्लस के बदले माइनस बोल दो, 1 -1 क्या हो गया, 0। 5 -1, ध्यान में देगा, माइनस करना है, 5 -1 तो हो जाएगा 6। फिर -1 -5, -6, 2 -2 सो 0। ठीक है, राइट, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख देता हूँ, एज एबो, एज एबो मीन्स जैसे हमने ऊपर किया ना, ऐसे। तो जस्ट लुक, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ध्यान से देखो, लुक एट द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो 0 6 0 -6 साइन चेंज हुई ना। स्क्यू सिमेट्रिक में ऐसा होता है कि रो और कॉलम में साइन चेंज होती है, 2 होता है तो -2 हो जाता है, 6 है तो -6 हो जाता है। सेकंड रो है -60, सेकंड कॉलम में 60, तो देखो वो भी, हाँ, हो गया, मतलब कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हाँ, व्हाट वी हैव टू डू इज हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ ए माइनस ए डैश। तो हाफ से करोगे तो 0 विल रिमेन 0 ओनली, 6 बिकम 3 -3 0, बराबर। तो ये हमारा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, राइट, एंड फाइनली हम आंसर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 10। हाँ, अभी मैंने जो स्टार्टिंग में लिखा ना वो रिमाइंडर के लिए, वो स्टार्टिंग में आप नहीं लिखो तो चलेगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश
You know now that this is a symmetric one. ये जो है ये symmetric हो गया है और ये वाला जो है वो skew symmetric हो गया. And what is the question asked? The question asked is express the following matrices as the sum of symmetric and a skew symmetric matrix. तो वो हमारा हो गया ना. अब यहाँ पर आपको जो मैंने ऊपर ऑब्टेन करके रखा हुआ है वो यहाँ पे लिख देना है. So half a plus a dash ये रहा, ठीक है. So that I will note it down here, write it down here. So it means 1, 2, 2, 2 plus, and now this one. ये क्या है? 0, 3 minus 3, 0. ये हमारा हो गया मैट्रिक्स ए. ठीक है. अब इससे आगे नहीं जाना है दोस्तों. दिस इज डन आंसर. इसको आप आंसर बोलोगे. अब थोड़ा ध्यान से देखो. तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके. और जस्ट वॉच केयरफुली, टेक द एडिशन. तो इन दोनों का एडिशन ए ही होने वाला है. चेक करो. 1 plus 0 1. ठीक है. मैट्रिक्स ए हमारे पास ये रहा. देखो ये रहा मैट्रिक्स ए. क्या होना चाहिए? 1 5 minus 1 2. ये आंसर आना चाहिए. तो चेक करो. 1 plus 0 1 आ गया. 2 plus 3 5 आ गया. 2 plus minus 3, so 2 minus 3 minus 1 आ गया. एंड 2 plus 0 2 आ गया. मतलब इन दोनों का एडिशन करोगे तो मैट्रिक्स ए बनता है. है ना. ठीक है. इन दोनों का एडिशन करो तो मैट्रिक्स ए बन जाता है. इसका मतलब कि ये वी हैव एक्सप्रेस्ड द मैट्रिक्स ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है ना. राइट. सो नाउ होपफुली यू विल बी एबल टू डू दिस एक्सरसाइज. इसमें से जो भी है वो आप ट्राई करोगे दोस्तों. हाँ. होमवर्क में अब जस्ट फिनिश करो ये एक्सरसाइज और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे. हाँ. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो एक्सरसाइज 3.3 के बाद वाला जो है. ठीक है ना. राइट. दैट वी विल डू. देयर इज सम एलिमेंट्री operations or you can say the transformations and all that. सबसे इम्पोर्टेंट है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. मतलब जिसका इनवर्स मिलता है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा. होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके. थैंक यू वेरी मच. इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज डू इट सो एंड रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स आल्सो. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. नाइस डे.